A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we discussed a lots of the theoretical as well as the practical concepts related to the fifth chapter, that is in retirement and death of a partner. In this chapter, we already discussed the all types of the practical problem as well as the theoretical concept like computation of new profit sharing ratio and gaining ratio. Number two, that is an adjustment of goodwill and the different cases related to the adjustment of goodwill on the retirement of a partner. As well as we discussed the accounting treatment of revaluation of assets and liability as well as the accounting treatment of general reserve, specific reserve, accumulated profit, accumulated losses, and in the last few videos we discussed about the adjustment of capital, and you can see that there are two cases are applicable on the retirement of a partner related to the capital adjustment. The first case, when total capital of the firm will be given in the question and when capital of the firm will not be given in the question. As well as we can see that how we will prepare the retiring partner's loan account on the retirement of a partner. And you can see that how we will settle the loan account of the retiring partner. So in today's video, let's we solve the question number 50 of your book. With the help of the question number 50, we develop a concept to prepare a revaluation account, partner's capital account, partner's loan account, as well as the adjustment of capital and the preparation of the revised balance sheet on the retirement of a partner. So without creating delay, let's we start the very important question of your class of your book, that is in question number 50. The question number 50 says that following is the balance sheet of GKW as at 31st March 2015 who share profit in the ratio of 3:2:1. So in the question number 50, there are three partners. The name of the partner is GKW and their profit sharing ratio will be a 3:2:1. Apart from this, the other information is also given. The capital of G is 22,000, capital of K 13,000, capital of W is 9,000. Creditors 10,000, bills payable 4,000 and general reserve 12,000. As well as in the asset side, we can see that the goodwill 7,500, stock 12,500, data 12,000, land and building 15,000, plant and machinery 18,000, motor vehicle 5,000, and total of the balance sheet is 70,000. On 1st April 2015, G retired. So the second important information is G retired on 1st April 2015 and the following agreement were agreed upon. Goodwill of the firm is 15,000. Goodwill of the firm is 15,000 and the any other adjustment like the assets and liability are to be valued at stock 10,000, data 11,500, land and building 18,000, plant and machinery 16,500, sundry creditor 9,200. Number third, liability for workman compensation to 500 is to be bought into the books. And number four is the entire capital of the firm as newly constituted be fixed as 35,000 between K and W, and it is also given the information the new capital of the firm. New capital of the firm is 35,000 between K and W. Why? Because G retired. G रिटायर होने के बाद K और W के बीच में जो न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म है
वो है 35,000 जो डिस्ट्रीब्यूट होगी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:3। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी? दैट इज इन 4:3। द actual cash to be paid off or to be brought in by continuing partner as the case may be। अगर existing capital और न्यूली कैपिटल में कोई डिफरेंस आता है तो उसे हम एडजस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कैश अकाउंट। कैश से उसको एडजस्ट किया जाएगा। एंड द अनदर इंफॉर्मेशन इज आल्सो गिवन इन दिस क्वेश्चन इज दैट so the next information is also given in this question is Rupees 13,150 were paid to G and the balance due to him was to be paid in 3 equal installments annually together with interest at the rate of 12% per annum। यानी कि G का जो रिटायरमेंट टाइम जो ड्यू अमाउंट आएगा उसे हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और उस लोन के पैसे को हम 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर annum। And the one more information is also given कि G को हम immediately 30,150 पे भी करेंगे। And the question is give necessary ledger account। तो उसमें कौन कौन से ledger account प्रिपेयर करने हैं हमें? First is revaluation account, second partners capital account and third बैंक अकाउंट के साथ साथ यानी कैश अकाउंट के साथ साथ, क्योंकि क्वेश्चन में ना कैश इन हैंड है ना कैश एट बैंक है, तो हमारे ऊपर है कि हम कैश अकाउंट मेंटेन करें कि बैंक अकाउंट, एज वेल एज इसमें पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट भी प्रिपेयर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर जीज रिटायरमेंट एंड जीज लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड ऑफ, जब तक ये पूरा पे ऑफ नहीं हो जाता। सो फर्स्टली विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन हम क्या प्रिपेयर करेंगे? वी हैव टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। So how we will prepare the revaluation account? Revaluation account के बारे में क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि कौन कौन से नए वैल्यूज हैं, रिवाइज्ड वैल्यूज हैं, उसकी हेल्प से हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले वैल्यू दी हुई है स्टॉक की न्यू वैल्यू है 10,000 और जबकि उसकी बुक वैल्यू थी 12,500, तो इसका मतलब स्टॉक की वैल्यू डिक्लाइन हो गई 2,500 से, लॉस हो गया। सेकंड डेटर 11,500 है, पहले था डेटर 12,000, तो डेटर की यहाँ वैल्यू कम हो गई 500। अनदर लैंडिंग वेटिंग 18,000, पहले था लैंडिंग वेटिंग 15,000, से ये प्रॉफिट हो गया 3,000 रुपीस का। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है प्लांट एंड मशीनरी 16,500, जबकि पहले थी प्लांट एंड मशीनरी 18,000, सो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई। डिफरेंस निकाल लीजिए 18,000 माइनस 16,500, सो ये डिफरेंस आएगा 1,500 का। आफ्टर दैट यू कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ द सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि मोटर वेहिकल के बारे में कुछ बोला नहीं है तो उसको वैल्यू एज इट इज वैसी ही रहेगी। सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू 9,200, जबकि पहले थी 10,000, सो ये फायदा हुआ। सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी हो गई? 9,200, तो 800 का में क्या हो गया? प्रॉफिट। अब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा डेबिट साइड ज्यादा है 3,000 4,500, जबकि इधर आ रहा है 3,800, तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस आ रहा है 1,200। डिफरेंस कितना आ रहा है? 1,200। One more also the mistake is also given. The point number 3, liability for workman compensation amounting to 500, और आप देखिए आपके पास कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा आपका क्या है? लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ये पूरा का पूरा आपके लिए लॉस हो गया। सो अब डेबिट में लॉस है 5,000, जबकि प्रॉफिट है 3,800, सो 5,000 आपके लिए क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का, 1,200 आपके लिए हो जाएगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और आपको पता है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को हम लोग क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं। GKW ओल्ड रेशियो 362616, ये आएगा आपका
600, 400, 200. So this is called revaluation account on the retirement of G. Okay. Now हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है नहीं, सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जीरो है, सो पूरा का पूरी जो लायबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन की, इट इज इन लॉस एंड इट विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पहले तो यहाँ 3 पार्टनर्स हैं, जी के डब्ल्यू, जी के डब्ल्यू, जी के डब्ल्यू, जी के डब्ल्यू। सबसे पहले क्या राइट डाउन करते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इज 22,000, 13,000 एंड 9,000। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जी रिटायर हो रहा है और के और डब्ल्यू कंटिन्यू करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म। लेकिन उससे पहले जो भी अदर एलिमेंट्स नहीं है, उससे पहले बैलेंस शीट में देखें कोई ऐसा आइटम तो नहीं है जिसे पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। लायबिलिटी साइड में यू कैन सी दैट जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है तो क्या करते हैं हम लोग, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि ये जो ओल्ड रेशियो 3:2:1 में हम 12,000 रुपीस को डिवाइड कर देंगे, यानी 12,000 रुपीस को हम लोग क्या करेंगे 3:2:1 में डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 6,000, 4,000, 2,000। सिमिलरली उसी तरह से हम एसेट साइड में भी देखेंगे कि कोई ऐसा आइटम तो नहीं जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सो यू कैन सी दैट दैट इज गुडविल। ये गुडविल कौन सी, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। सो जो गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो होती है उसे ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं, और अमाउंट ऑफ द गुडविल है 7,500। सो 7,500 को हम पहले 6 से डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि टोटल 6 है, 6 1 6, ओके 1 कैरी हुआ, 6 2 12, 3 1250, तो इसको मिलेगा 1250, इसका डबल 2,500, इसका ट्रिपल, तो ये आ गया आपका 3 और 4 5 6 7 7,500 हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, यानी गुडविल को राइट ऑफ कर दिया इन द ओल्ड रेशियो। अब एसेट्स में कोई ऐसी बैलेंस शीट में कोई ऐसा आइटम नहीं जिसे हम पार्टनर्स कैपिटल में राइट ऑफ करते हैं। उसके बाद हमारा रिवैल्यूएशन पे लॉस है, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस है 600, 400, 200, उसे हमने पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिख दिया। ये हमारा बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अब ये कंप्लीट नहीं है, क्यों? क्योंकि अब इसमें कई सारे एडजस्टमेंट्स हमें करने हैं, जिसमें सबसे पहला एडजस्टमेंट है गुडविल, क्योंकि ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर यू नो वेरी वेल कि जब क्वेश्चन में कोई भी पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो रिटायरिंग पार्टनर को क्या देते हैं, गुडविल प्रोवाइड करते हैं। इन विच रेशियो, इन देयर गेनिंग रेशियो। सो यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1 हम लोग प्रिपेयर करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या होगा, गुडविल का। गुडविल के लिए हम लोग क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे, क्योंकि ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में कितना दिया है 3:2:1। सो जब न्यू रेशियो कितना आएगा, ओल्ड रेशियो किसके में, जी के डब्ल्यू। अब के और डब्ल्यू का जो न्यू रेशियो वो क्या आएगा 2:1, क्योंकि क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब आपके मन में आएगा सर ये जो 4:3 दिया है 35,000 को जो न्यू कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या ये न्यू रेशियो है? नहीं। जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये ना कहे कि 35,000 जो है उसे इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:3 व्हिच इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये ना कहे कि वो न्यू रेशियो है तब तक हम उसे न्यू रेशियो एज्यूम नहीं कर सकते। इसलिए देखिए नीचे हिंट में भी लिखा है 4:3 इज नॉट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसी कोई हिंट नहीं दिया है। सो ये नया रेशियो भी है और गेनिंग रेशियो भी आपका कितना है 2:1। सो इसका मतलब के और डब्ल्यू जी को गुडविल प्रोवाइड करेंगे, उसका शेयर किस रेशियो में 2:1। सो आप जी का रेशियो, जी की गुडविल निकाल लीजिए क्योंकि जी रिटायर कर रहा है। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 15,000 और कितना बनेगा 7,500, यानी जी को 7,500 देना है। और कौन देगा, के देगा और डब्ल्यू देगा। के कितना देगा
2:1 में देना है, यानी 2/3 और 1/3, यानी 5000 प्रोवाइड करेगा K और 2500 प्रोवाइड करेगा W। और लास्ट क्वेश्चंस में, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चंस कराया था उसमें आपको पता होगा कि जो पार्टनर रिटायर करता है उसकी क्रेडिट में गुडविल लिखते हैं और जो पार्टनर रिमेनिंग होता है उसे डेबिट में लिखते हैं। ये मैंने ट्रिक आपको बताया था कि रिटायरमेंट के टाइम अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो गुडविल का एडजस्टमेंट्स कैसे करेंगे। सो जी को गुडविल कौन देगा, के देगा और डब्ल्यू देगा। के कितना देगा 5000, 2000, यानी जी को टोटल 7500 मिलना चाहिए। सो जी ने 5000, के ने 5000, डब्ल्यू ने 2500 दिया और के और डब्ल्यू के डेबिट में लिखेंगे किसके नाम से, जी के नाम से। कितना 5000 के में और 2500। इसका मतलब हमने किया क्या, जिसको गुडविल मिलना चाहिए था उसके क्रेडिट में लिखा और जिसने गुडविल दिया उसके डेबिट में लिख दिया, तो हमारा आधा काम कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सारा एडजस्टमेंट्स कंप्लीट करने के बाद नाउ अब हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट की तरफ मूव करेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट इज गिवन द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म इज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड विद फिक्स 35000 और जैसे न्यू पार्टनर यानी कि जो न्यू पार्टनर कौन कौन बचे हैं, रिमेनिंग पार्टनर यानी के और डब्ल्यू किस रेशियो में डिवाइड करेंगे 4:3। तो ये तो इजी है, लेकिन उससे पहले यू नो वेरी वेल हमें जी को क्या करना है, इमीडिएट पे करना है, पॉइंट नंबर 5। सो प्लीज रीड द पॉइंट नंबर 5 वेरी केयरफुली। 13,150 were paid to G, पे कर दो जी को 13,150 पे कर दिया जी को और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जी के लोन अकाउंट में डाल दें। रिमेनिंग अमाउंट कैसे फाइंड आउट होगा, सबको टोटल करेंगे और उसमें से इन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तीनों को माइनस करेंगे। सो सबको आप ऐड करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे डेबिट वाला अमाउंट। सो आई होप कि आपका भी कैलकुलेशन एकदम करेक्ट आया होगा। सो जब मैंने जी का बैलेंस किया आफ्टर पेइंग कैश 13,150, सो वी फाइंड आउट कि जी को कितना पे करना है, मे बी 18,000 पे करना है और उसके बाद के और डब्ल्यू का हमने एग्जिस्टिंग कैपिटल फाइंड आउट की। 17,000 में पहले से 7,900 कर दिया तो आया 9,100 और डब्ल्यू यानी 11,000 में से हम लोगों ने माइनस किया 3,950 तो आया 7,050 and this will be your existing capital of K and W and after that आपको पता है इस बैलेंस को हम लोग ब्रॉट डाउन करते हैं, फिर न्यू कैपिटल राइट डाउन करते हैं। तो हम अब वर्किंग नोट नंबर 2 प्रिपेयर करेंगे। जब वर्किंग नोट नंबर 2 प्रिपेयर करेंगे तो हम ये कर रहे हैं एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल। आपको मैंने बताया था कि टोटल कैपिटल कितना है फर्म की, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म है 35,000। उसमें हम पहले किसकी कैपिटल निकालेंगे, जी की जी तो चला गया, रिटायर कर गया, के और डब्ल्यू की कैपिटल। तो के की कैपिटल कितने हैं, 35,000 इंटू 4/7 और 35,000 इंटू 3/7 डब्ल्यू की। सो यहाँ गया 20,000 जी की और 15,000 डब्ल्यू। ये कैपिटल निकल गए, न्यू कैपिटल ऑफ के एंड डब्ल्यू। आफ्टर दैट आपको पता है कि इसके नीचे हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम स्पेस क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे। जब बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे सो उसके बाद हम लोग इसके बाद जब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे जी के डब्ल्यू। सो ये बैलेंस जो सीडी है इसको हम लोग पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। सो जब बैलेंस बीडी किया तो कितना लिखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, 9,100 के का तो डब्ल्यू का कितना है 7,050 और उसके बाद यहाँ हम लोग बैलेंस करेंगे न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म। न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म कितना है, अब न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म है आपकी 20,000 फॉर के एंड 15,000 फॉर डब्ल्यू। सो यू कैन सी दैट न्यू कैपिटल और एग्जिस्टिंग कैपिटल के बीच में जो डिफरेंस है उसे हमें किससे एडजस्ट करना है, कैश से एडजस्ट करना है। ठीक है, कैश से एडजस्ट करना है। सो यू कैन सी दैट के को कितना ब्रॉट करना पड़ेगा 10,900 वेयर एज डब्ल्यू को कितना ब्रॉट करना पड़ेगा 7,950। सॉरी फॉर दैट,
ब्रॉड करना पड़ेगा, क्योंकि यू कैन सी दैट एग्जिस्टिंग कैपिटल इज ओनली 9100 और न्यू कैपिटल 20000, यानी दोनों की कैपिटल अगर आप कंपेयर करो तो दोनों की ओल्ड कैपिटल कम है और न्यू कैपिटल ज्यादा है। इसका मतलब दोनों को एक्सेस कैपिटल लेकर आना पड़ेगा। जितना भी डिफरेंस आएगा दोनों के बीच का, एक का आएगा 10900 और दूसरे का आएगा 7950, ये इनका कैश लेकर। सो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हुआ यहाँ से यहाँ तक, और ये इसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया। सो हम लोगों ने कौन से लेजर अकाउंट बना लिए, पहले रिवॉल्यूशन फंड बना लिया, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया विद कैपिटल एडजस्टमेंट। उसके बाद हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट सिंपल सा बनता है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर्मेट वही है, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी कैश का ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग, तो सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, जहां कहीं भी आपको कैश दिख रहा है, कहां का दिख रहा है, एक ये कैश दिख रहा है जो हमने जी को पे किया, और ये कैश दिख रहा है जो के और डब्ल्यू लेकर आए हैं ड्यू टू द कैपिटल एडजस्टमेंट। सो ये दोनों क्या पैसा आया है। सो के ने कितना पैसा लेकर आया है 10900 और डब्ल्यू कितना पैसा लेकर आया है 7950। उसी तरह से जी को हमने कितना पे किया है इमीडिएटली 13150। सो ये आप बैलेंस करिएगा, जो बैलेंस आएगा कैश का, इसे हम लोग कहां शो करेंगे, इसे हम शो करेंगे इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के एसेट साइड में कितना शो होगा कैश का बैलेंस आएगा 5700। एक बार आप चेक भी कर लीजिएगा, ये 5700 ही आएगा। सो आपने 3 लेजर अकाउंट बना लिया, एक आपने रिवॉल्यूशन बना लिया, एक आपने पार्टनर्स कैपिटल बना लिया और एक आपने कैश बना लिया। अब हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म बनाना है। चलिए बैलेंस शीट बना लेते हैं न्यू कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म की, उसके लिए हमें एडजस्टमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। रिवॉल्यूशन अकाउंट की जरूरत थी, बट ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस हमें उसे रफ करना पड़ा, लेकिन आपने तो नोट डाउन किया होगा, सो उसकी काफी जरूरत पड़ेगी। अब हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, दिस इज इन लायबिलिटी साइड एंड इट विल बी इन एसेट साइड। सबसे पहले आप पहले ओल्ड बैलेंस शीट देखिए और उसे रिवॉल्यूशन से मैच कराइए। सबसे पहले कैपिटल दिया हुआ, सो कैपिटल किसका लिखेंगे किसका, के का और डब्ल्यू का। के की कैपिटल कितनी है 20000 50000, यही उनकी न्यू कैपिटल है। उसके बाद क्रेडिटर्स की वैल्यू है 10000, लेकिन न्यू वैल्यू थी क्रेडिटर्स की 9200। उसके बाद बिल्स पेबल है 4000, उसमें कोई चेंज नहीं था, लेकिन हाँ जनरल रिजर्व को हम लोगों ने पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, सो उसको न्यू बैलेंस शीट पे शो नहीं करेंगे। उसके अपार्ट फ्रॉम दिस आपको पता है कि हमारा क्लेम बना था, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 500 रुपीज का क्लेम था, यानी पहले से हमारे पास कोई रिजर्व नहीं था, इसलिए इस क्लेम को बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो करेंगे। अब हम एसेट साइड में जो भी न्यू वैल्यूज हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे स्टॉक, पहले कुछ अलग वैल्यू थी, लेकिन अब 10000 उसकी वैल्यू हो गई। डेटर की वैल्यू 11500। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 18000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की कितनी वैल्यू आई थी, प्लांट एंड मशीनरी की 16500। क्रेडिटर्स की वैल्यू नहीं है, और किसकी वैल्यू अनचेंज थी, इसमें वैल्यू अनचेंज थी मोटर व्हीकल की 5000। और गुडविल इसलिए नहीं लिखी, गुडविल ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया गया है बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। एंड कैश आपके पास मेंटेन हुआ है ड्यू टू द कैपिटल एडजस्टमेंट। 2 पार्टनर कैपिटल लेकर आए थे और एक पार्टनर को आपने उसके रिटायरमेंट में कुछ पैसा पे किया, तो 5700 आपके पास कैश शो हो रहा है। और क्या बच गया बैलेंस शीट में, ये जो लोन अकाउंट है, क्योंकि अभी आपने लोन जी को यानी रिटायरिंग पार्टनर को पूरा पे नहीं किया, उसकी बैलेंस कुछ बैलेंस अमाउंट आपने उसके काम ट्रांसफर किया लोन अकाउंट में, सो ये लोन अकाउंट भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो होगा। सो ये देखिए आपका बन गया बैलेंस शीट ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, बैलेंस शीट आफ्टर जी's रिटायरमेंट।
अब आप इसको जब टोटल करेंगे, सो वी फाइंड द इक्वल बैलेंस ऑन द बोथ साइड। सो बैलेंस शीट का जो टोटल आएगा 50 का वो आ रहा है 66,700। ओके, सो प्लीज नोट डाउन cash account, partners capital account and balance sheet, and now we are moving to the loan account, क्योंकि अभी लोन अकाउंट भी बनाना जरूरी है हमारे लिए। So after completing the most of the ledger account and the balance sheet of the question 50, now we are moving to the preparation of loan account, and you can see that how we will prepare the partners loan account on their retirement, and you can see that कि जो पार्टनर रिटायर हुआ है जी, उसका लोन अकाउंट कितना है, लोन है 80,000 रुपीज, और अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन व्हिच इज क्लियरली गिवन, द बैलेंस ड्यू टू हिम वाज टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। सो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, सो इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी, 18,000 डिवाइडेड बाय 3, that is 6,000 plus 12% इंटरेस्ट पर annum, उस पे 12% पर annum का इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। एंड नाउ इट इज ऑल्सो गिवन कि हमें लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है टिल इट इज फाइनली पेड ऑफ, जब तक कि वो पे ऑफ नहीं हो जाता। सो ये लोन अकाउंट का पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट क्या होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। That is a date, particular amount, date, particular amount। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लोन अकाउंट। सबसे पहले हम लोग वो डेट लिखते हैं जिस डेट को कोई पार्टनर रिटायर करता है। सो जो भी पार्टनर रिटायर किया है वो किस डेट को रिटायर किया है, 1 अप्रैल 2015। सो 2015 अप्रैल 1 को हमने क्या किया, उसका लोन अकाउंट मेंटेन किया 80,000 रुपीज का। कहां से, उसके कैपिटल अकाउंट से 80,000। ठीक, सो एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, मतलब आफ्टर 1 ईयर हम उसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, दैट इज इन 2016 मार्च 31। क्या लगेगा उस पे, इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट लगेगा, 18,000 रुपीज का 12%। दैट क्लियर, 18,000 रुपीज का कितना इंटरेस्ट लगेगा, 12% लगेगा। ओके, और फिर जब हम पे करेंगे 2016 को मार्च 31 को जब पे करेंगे कैश या बैंक से, तो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 6,000 रुपीज की, प्लस जो इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट किया वो भी यहाँ पे आउट किया जाएगा। सो इंटरेस्ट कितना आ रहा है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी टोटल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना पे हुई, 8160। फिर हम उसको बैलेंस करेंगे, और बैलेंस आपका आएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद 12,000। फिर 2016 अप्रैल 1 को फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा सेकेंड ईयर के इंस्टॉलमेंट के लिए 12,000। फिर हम उस पर क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे आफ्टर 1 ईयर। तो 2016 अप्रैल 1 के बाद 1 ईयर के बाद क्या आएगा, 2017 मार्च 31, कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, 12,000 रुपीज का 12%। क्योंकि आपको पता है इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग बैलेंस का जो आउटस्टैंडिंग होता है उस पर इंटरेस्ट चाहेगा 1440। और फिर जब हम 2017 में मार्च 31 में जब पे करेंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की, अब ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो 6,000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट और 1440 रुपीज का इंटरेस्ट, 7,450। और फिर जो बैलेंस आएगा कितना आएगा, इसका बैलेंस 6,000। आप देख लेना ऑटोमेटिक उतना ही बैलेंस है। अब आप उसको बैलेंस कीजिए। ये सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया। फिर थर्ड ईयर हम लोग क्या करेंगे, अप्रैल 1 को बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। अब बैलेंस आया 6,000, और फिर हमें क्या पे करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है। कब, थर्ड ईयर, यानी 2017 में अगर आप बैलेंस ब्रॉट डाउन है तो उसका इंटरेस्ट कब पे होगा, ऑन 31 मार्च 2018। इंटरेस्ट कितना होगा, 6,000 इंटू 12%, 720। और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, पे करेंगे थ्रू कैश,
ये कैश लिखा हुआ है, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। थर्ड इंस्टॉलमेंट 2018 मार्च 31, कितना पे करेंगे 6000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट 720, टोटल पे हुआ 6720। So this is a partner's loan account on the retirement of the G, and you can see that how we will prepare all the important necessary ledger account on the retirement of a partner. Okay. So you can see that how we will prepare all the types of the ledger account in the question number 15, and we can see that how we will prepare the revaluation account, partners capital account with capital adjustment, as well as the cash or bank account, balance sheet of new constituted firm after the retirement of a partner, as well as the retiring partner's loan account with the help of the given information. And I hope today will complete all the things very easily. And now in the next video we will move to the another part of this chapter, that is in death of a partner. So आज के लिए इतना ही. Thank you, take care, goodbye.